Good morning, everyone. I hope you all be all right at your home. So, I welcome to you on my YouTube channel. Basically, before this class, we had already discussed about the chapter first, which was your operating system. Now, as I have told you, we will discuss all the rest chapters in the form of Hindi and English, because it's very important to understand what is the meaning of algorithm. It's your new chapter. Actually, student, मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको कि आपको इस चैप्टर में समझना जरूरी है कि जो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा, दैट इज योर चैप्टर 4, विच इज बेस्ड ऑन एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट. तो अगर हमें एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट सही से समझ में आएगा तो हम अपने आगे के प्रोग्रामिंग पार्ट्स को इम्प्रूव कर सकते हैं या उसको हम आसानी से समझ सकते हैं. Are you getting my point? So what we have to do in this chapter, we have to read about the algorithm and flow chart. Algorithm and flow chart. So, we'll discuss about the first algorithm. You all will listen all these things very carefully because it's very important for you. Actually, आप कह सकते हो कि यहीं से आपकी प्रोग्रामिंग पार्ट का कॉन्सेप्ट शुरू होता है, स्टार्ट होता है. अगर आपको एल्गोरिथम क्लियर हो गया तो सारे प्रोग्राम्स भी आसान हो जाएंगे आपको डेवलप करने के लिए. बेसिकली about the algorithm, I would like to discuss with you. First, algorithm means the basic fundamental knowledge to solve any problem is called algorithm. Student, the basic fundamental knowledge to solve any problem is called algorithm, or step-by-step procedure to solve any logical and mathematical calculation is called algorithm. We have different types of definition of the algorithm, but I am giving you standard definition. That is the basic fundamental knowledge to solve any problem is called algorithm. Or next definition is given in your book also. That is your step-by-step procedure to solve any logical and mathematical calculation or mathematical problem. That is called algorithm. That is called एल्गोरिथम. So is that clear? क्या है एल्गोरिथम? हमारा किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो बेसिक फंडामेंटल नॉलेज हमारे पास होता है उसको हम क्या कहते हैं? एल्गोरिथम कहते हैं. और आप कह सकते हो कि किसी भी लॉजिकल या मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर्स लिखते हैं हम, उसको हम क्या कहते हैं? एल्गोरिथम कहते हैं. नाउ क्वेश्चन इज दैट स्टूडेंट, व्हाई डू वी रीड अबाउट द एल्गोरिथम? So I would like to call your focus on this point, that is, it's not necessary everyone is knowing about the every types of programming languages. It means ये जरूरी नहीं है कि हर स्टूडेंट या हर पर्सन हर तरह की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को जानता हो, लेकिन but it's important, it's necessary to know about the algorithm. बिकॉज ऑफ अगर हम एक प्रोग्रामर से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो किसी भी प्रोग्राम्स को किसी लैंग्वेज में डेवलप करेगा या कर देगी, तो उससे हम ये भी एक्सपेक्ट करते हैं कि मस्ट हैव, शी शुड हैव ओके नॉलेज अबाउट द एल्गोरिथम. उसको उस पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जानकारी हो चाहे ना हो, उसको एल्गोरिथम के बारे में आइडिया जरूर होगा. इसीलिए एल्गो सबको पढ़ना चाहिए. एल्गोरिथम पढ़ने से आपका प्रोग्रामिंग का जो बेसिक कॉन्सेप्ट होगा वो क्या होता है? इंप्रूव हो जाता है और आपको आइडिया लग जाता है कि किस तरह से आपको लॉजिकल पार्ट अपने प्रोग्राम्स में यूज करने हैं. इज दैट क्लियर? नाउ so first thing we will discuss about the algorithm, and after completing the algorithm we will discuss about the flow chart. Fine? So student, will pay attention on the algorithm first, and that is the chapter number 4. Actually,
in your chapter there is limited algorithm that is for the preparing your book, bag, making tea, making different types of items. This is the basic fundamentals. But here I will tell you more and more algorithm which will be totally based on the programming. पूरी तरीके से सारे एल्गोज आपके प्रोग्रामिंग पे बेस्ड होंगे और जैसे ही इस चैप्टर के बाद हम लोग जावा शुरू करेंगे तो जावा में ये सारे एल्गोज आपको हेल्प करेंगे. कैसे? केवल हमको जावा में सिंटैक्स सीखना होगा. आपका सारा लॉजिक, सारा जो कैलकुलेशंस होंगे, सारे लॉजिकल पार्ट्स होंगे, या कैसे किसी प्रोग्राम्स को डेवलप करते हैं, ये सब कुछ आपका सारी चीजें इसी एल्गोरिथम में मैं क्लियर कर दूंगा. क्लियर? सो देन गेट रेडी टू लर्न अबाउट द एल्गोरिथम. So we'll give the first heading that is about the algorithm. This is about the algorithm. As I told you, the basic fundamental knowledge to solve any problem is called algorithm, or step by step procedure to solve any problem is called algorithm. Clear? किसी भी प्रॉब्लम को या किसी भी मैथमेटिकल या लॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो स्टेप्स राइट किए जाते हैं, जो प्रोसीजर्स राइट किए जाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? एल्गोरिथम कहते हैं. या किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो स्टेप्स राइट किए जाते हैं, जो प्रोसीजर्स लिखे जाते हैं, जो फंडामेंटल नॉलेज होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? एल्गोरिथम कहते हैं. सो आई थिंक ये एल्गोरिथम आपका पार्ट क्लियर हो गया होगा. क्लियर. सो अब एल्गो लिखने के लिए या एल्गो जब राइट करते हैं हम लोग, तो उसके कुछ रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं. कुछ रूल्स पे हम लोग ध्यान देंगे यहाँ पे कि क्या वो रूल्स हो सकते हैं और क्या दिए गए हैं. कुछ रूल्स आपके बुक्स में भी मेंशन किए गए हैं और वो रूल्स क्या है ये बताए जा रहे हैं यहाँ पे. सबसे पहले जो एल्गो लिखा जाएगा वो एक सिंपल लैंग्वेज में होगा और वो लैंग्वेज क्या होगी? आपकी इंग्लिश होगी, जिसको आप आसानी से क्या कर सकते हो? समझ सकते हो. एल्गो जब भी लिखते हैं तो उसमें हम बहुत कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स का यूटिलाइजेशन नहीं करते हैं, सिंपल वर्ड्स का सिलेक्शन करते हैं. और सिंपल वर्ड्स के सिलेक्शन से ये रहता है कि जो भी स्टेप्स या जो जो प्रोग्राम्स लिखे गए हैं वो हमको आसानी से क्लियर हो जाते हैं. इट शुड बी रिटन इन अ सिंपल एंड प्रिसाइज मैनर सो दैट एवरीवन कैन अंडरस्टैंड इट. नेक्स्ट पार्ट, थर्ड, एन इनपुट इज रिक्वायर्ड टू राइट एन एल्गोरिथम. What we have to do? जब भी कोई प्रोग्राम हम लिखते हैं या जब भी एल्गोरिथम लिखते हैं तो कुछ स्टेप्स है, मैं बता रहा हूँ, यही रूल्स है हमारे पास. और रूल्स में क्या है? सबसे पहले हमें इनपुट की जरूरत पड़ेगी और इनपुट की रिक्वायरमेंट इसलिए होगी ताकि आप इनपुट में क्या क्या मेंशन करना चाहते हो, उसके बाद उसके अकॉर्डिंगली हम लोग करते हैं वर्क को. लाइक इट इज गिवन एन इनपुट इज रिक्वायर्ड टू राइट एन एल्गोरिथम. नेक्स्ट, ईच स्टेप शुड बी रिटेन इन अ सीक्वेंशियल manner. In a sequential manner means whatever steps you will write in your algorithm, that should be defined. Means you are going to write first step, second step, third step, fourth step, fifth step. ये सब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे लिखना है. ये रूल्स आपके बुक में भी दिए गए हैं. इसको 2-3 पॉइंट्स है, आप इसको पढ़ लेंगे, जिसमें से मैंने बताया कि each step should be written in a sequential manner. इससे पहले मैंने बताया कि इनपुट जो होगा वो एल्गोरिथम के लिए रिक्वायर्ड होगा. सारे स्टेटमेंट्स आर सिमिलर टाइप शुड बी कंबाइंड टू अवॉइड द लेंथी कोड. मतलब क्या हुआ कि जितने भी चीजें आप लिखोगे, जो भी स्टेटमेंट्स लिखोगे, वो एक तरह से होने चाहिए. अननेसेसरी आप क्या करोगे? किसी भी अपने प्रोग्राम्स के कोड को लेंथी नहीं बनाओगे. क्लियर है? अब ध्यान से समझो कैसे एल्गोरिथम लिखना है और आपको क्या करना है. जैसे मैंने कहा कि जो एल्गो आप राइट करोगे वो आपके इंग्लिश में होगा, राइट? क्योंकि आप सब लोग इंग्लिश के स्टूडेंट हो, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो और सबको इंग्लिश आती है. लेकिन कंप्यूटर को इंग्लिश नहीं आती है. कंप्यूटर केवल कंप्यूटर लैंग्वेज को समझता है, एंड दैट इज योर 0 and 1. तो इसको आपको कंप्यूटर में नहीं लिखना है. एल्गोरिथम हमेशा हार्डवर्किंग का पार्ट होता है, पेपर वर्क का पार्ट होता है. पेपर पे हम इसको राइट करते हैं या कॉपी में मेंशन करेंगे और इसी एल्गोरिथम को हम क्या करेंगे? प्रोग्राम में इंप्लीमेंट करेंगे. और जब प्रोग्राम में इंप्लीमेंट करोगे तो आप जानते हो जब प्रोग्रामिंग करते हो तो कंप्यूटर उसको समझता है और फिर उसके अकॉर्डिंगली आपका आउटपुट जनरेट करता है. क्लियर है? तो सबसे पहले किसी भी एल्गोरिथम को लिखने के लिए हमारे पास एल्गोरिथम होना चाहिए कि हमको लिखना क्या है. क्लियर है? फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम टेलिंग यू द फर्स्ट एल्गोरिथम हाउ यू हैव टू राइट. सपोज टू बी स्टूडेंट, I am going to write
फर्स्ट क्वेश्चन, राइट एन एल्गोरिथम, जस्ट पे अटेंशन, राइट एन एल्गोरिथम, एल्गोरिथम को मैं बार बार एल्गो राइट करूंगा शॉर्ट फॉर्म में, राइट एन एल्गोरिथम टू फाइंड sum of two number, sum of two number. It is based on the mathematics. आपको क्या करना है, इसमें एक एल्गोरिथम राइट करना है, किस चीज के लिए, किसी भी दो नंबर का सम फाइंड आउट हो सके. Now you all will pay attention how I am going to write the algorithm to find sum of two number. Clear? सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल मेंशन स्टार्ट. व्हाट वी विल मेंशन, स्टार्ट. इट्स अ स्टैंडर्ड मेथड टू राइट एन एल्गोरिथम. ये इंजीनियरिंग में इस लेवल से का एल्गोरिथम बताया जाता है. इट्स गिवन वेरी सिंपल लैंग्वेज इन योर बुक. बहुत सिंप्लिसिटी के साथ आपके बुक में दे दिया गया है और एक दो एल्गोरिथम से ज्यादा दिया नहीं गया है. लेकिन जो मैं यहाँ बता रहा हूँ, दिस इज द बेस्ट टेक्निक टू लर्न अबाउट द एल्गोरिथम. क्लियर है? सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, स्टार्ट लिखेंगे. क्या लिखेंगे, स्टार्ट. उसके बाद अभी आपको मैं रूल्स जब बता रहा था तो उसमें दिया हुआ था इनपुट शुड बी रिक्वायर्ड. तो यहां पे हम लोग मेंशन करेंगे इनपुट. क्या लिखेंगे, इनपुट. ये कभी भी गलत नहीं होता अगर इस तरह से आप लिखोगे तो. इट वुड बी द स्टैंडर्ड मेथड टू राइट एन एल्गोरिथम. क्लियर? फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी हैव टू मेंशन, स्टार्ट, आफ्टर दैट इनपुट. हम लोग किसके लिए एल्गोरिथम लिख रहे हैं स्टूडेंट, वी आर गोइंग टू फाइंड आउट सम ऑफ एनी टू नंबर. किसी भी दो नंबर का सम फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या लिखना है, एल्गोरिथम लिखना है. क्या लिखना है, एल्गोरिथम लिखना है. राइट? तो किसी भी दो नंबर का, तो किसी भी दो नंबर का मतलब ये हो गया कि हमें इसमें दो नंबर की जरूरत पड़ेगी. और वो दो नंबर कुछ भी हो सकता है, कोई भी दो नंबर हमारा हो सकता है. वो दो नंबर कांस्टेंट नहीं होना चाहिए कि केवल इसी दो नंबर का सम फाइंड आउट करना है. वो दो नंबर कोई भी हो सकता है. अगर आपको याद होगा तो मैंने क्यू बेसिक वगैरह में आपको ये सब सारी चीजें पढ़ाई हुई थी. ठीक है? तो अब इनपुट की बात करते हैं हम लोग. तो इनपुट के सेंस में व्हाट वी हैव टू डू, वी विल हैव टू टेक द हेल्प ऑफ वेरिएबल्स. यहां पे हम वेरिएबल लेंगे बिकॉज वेरिएबल विल बी द प्लेस which value will be always vary at run time. हमेशा इसकी वैल्यू रन टाइम पे क्या होती रहेगी, चेंज होती रहेगी. इसीलिए हम प्रोग्राम्स में डायरेक्टली वैल्यूज ना लेके वेरिएबल्स की बात करते हैं. किसकी बात करते हैं, वेरिएबल्स की. और इस वजह से बिकॉज ऑफ हमेशा वेरिएबल्स की वैल्यू विल बी वेरी, और इसकी वैल्यू हमेशा क्या होती रहेगी, चेंज होती रहेगी. सो आई एम गोइंग टू टेक फर्स्ट टू वेरिएबल्स विच विल एक्ट फॉर एज एन इनपुट for A and B. So I will mention input A, B. किसी भी दो नंबर की मैं बात कर रहा हूं. तो दो नंबर के लिए सपोज टू बी आई हैव गिवन 5 and 6. तो 5 को स्टोर करने के लिए हमने A ले लिया और 6 को स्टोर करने के लिए हमने क्या ले लिया, B ले लिया. Are you getting my point? अब हमने लिखा है इनपुट A, B. तो अब हमने A एज ए वेरिएबल लिया और B भी हमने एज ए वेरिएबल ले लिया. अब हमें करना क्या है, थर्ड स्टेप. देखो मैं स्टेप भी मेंशन कर रहा हूं. फर्स्ट स्टेप ये हो गया, सेकेंड स्टेप ये हो गया और थर्ड स्टेप लिखने जा रहा हूं. थर्ड स्टेप क्या होना चाहिए, जब हमने दोनों इनपुट कर दिया तो दोनों इनपुट करने के बाद होगा क्या, इसका आउटपुट होगा. आउटपुट का मतलब इसमें प्रोसेस क्या करना है हमको अभी पहले, तो C इक्वल टू A प्लस B. ध्यान से समझो इसको पहले आप सब लोग. C इक्वल टू A प्लस B. ये एरो इंडिकेशन है इधर. इसका मतलब ये हुआ कि A प्लस B का जो रिजल्ट होगा वो किसके अंदर स्टोर हो जाएगा, C के अंदर. किसके अंदर स्टोर होगा, C के अंदर स्टोर हो जाएगा. इसका मतलब ये हो गया कि A और B इसमें दोनों वैल्यू आएंगे और स्टोर होंगे, और इन दोनों का एडिशन जो होगा, इन दोनों का समेशन जो होगा, इन दोनों का जो टोटल होगा, इन दोनों का जो सम होगा वो किसमें स्टोर हो जाएगा, C में स्टोर हो जाएगा. उसके बाद हमारा रिजल्ट C में है, तो रिजल्ट को प्रिंट करने के लिए हम लिखते हैं प्रिंट C, क्योंकि रिजल्ट हमारा किसके अंदर है, C के अंदर. और इस एल्गो को हमने स्टार्ट किया था, फाइनली हम इसको स्टॉप कर देंगे या एंड कर देंगे. इन दोनों में से कोई एक आप यूज कर सकते हो. यू कैन यूज एनी वन. फाइन.
means first you have to mention start, after that you will take input a comma b. आप अगर चाहो तो एक लाइन और मेंशन कर सकते हैं इसमें, वो होगा आपका यहाँ पे, अगर आप चाहते हो थोड़ा सा और इंप्रेसिव इस एल्गो को बनाना तो आप यहाँ लिख सकते हैं पोस्ट में डबल कोट्स इंटर एनी टू नंबर, इंटर एनी टू नंबर, इसको डबल कोट्स के अंदर फिर कोट्स क्लोज। इसका मतलब हो गया कि कोई भी आपको दो नंबर यहाँ पे क्या करना है, इनपुट करना है, फिर इन दोनों वैल्यूज को लेने के बाद ए और बी में हम उसका रिजल्ट सी में स्टोर कर देंगे, उसके बाद सी को प्रिंट कर देंगे, लास्ट में स्टॉप या एंड कर देंगे। अब मैं इसको आंसर कैलकुलेट करके दिखाता हूं कैसे होगा। इसको अभी आप प्रोग्रामिंग में नहीं यूज करोगे, जब मैं प्रोग्रामिंग शुरू करूंगा तो मैं प्रोग्रामिंग में बताऊंगा कि कैसे करोगे। ये मैं एल्गो पढ़ा रहा हूं जिसको केवल आपको कॉपी में करना है, क्लियर, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अब कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए मैंने क्या किया कि सपोज करो कि ए की वैल्यू मैंने 5 दे दिया और बी की वैल्यू 6 दे दिया, या ये वैल्यू मैंने चेंज कर दिया, मैं इनपुट कर रहा हूं 8 और 9। तो 8 जब इनपुट करेंगे तो 8 जो होगा वो किसका वैल्यू हो जाएगा, ए का वैल्यू हो जाएगा, और 9 जो होगा वो किसकी वैल्यू हो जाएगी, बी की वैल्यू हो जाएगी। क्लियर है, इंटर एनी टू नंबर, तो हमने दोनों नंबर दे दिया 8 और 9। तो ए और बी में क्या स्टोर हो गया हमारे स्टूडेंट, 8 एंड 9। सी इक्वल टू ए प्लस बी हम कर रहे हैं, तो ए प्लस बी का मतलब हो गया 8 प्लस 9, और 8 और 9 का आंसर क्या होगा 17। तो 17 किसके अंदर स्टोर हो जाएगा, सी के अंदर, और जब आप प्रिंट करोगे सी को तो आपको यहां से आउटपुट क्या मिलेगा 17, फाइनली क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये एक प्रोसीजर है, ये एक स्टेप है कि कैसे किसी भी एल्गोरिथम को राइट करना है। मैं इसीलिए आपको ये सारी चीजें हिंदी में बता रहा हूं ताकि आपके कॉन्सेप्ट आसानी से क्लियर हो जाए। अदरवाइज उसके बाद हम लोग ट्रांसलेट कर लेंगे, वो दैट्स नॉट अ बिग इशू, ओके, बट इट्स इंपॉर्टेंट एनी हाउ यू मस्ट हैव नॉलेज अबाउट द एल्गोरिथम एंड यू शुड गेट इट प्रॉपरली। कहीं कोई कंफ्यूजन होगा तो उसको हम लोग डिस्कस करते हुए चलेंगे। बहुत सिंपल है। सबसे पहले किसी भी एल्गोरिथम को राइट करने के लिए फर्स्ट पॉइंट मेंशन करेंगे, स्टेप फर्स्ट। स्टेप फर्स्ट में क्या लिखना है, स्टार्ट, ठीक है। डजंट मैटर ये आपके बुक में इस तरह से लिखा है कि नहीं लिखा, नहीं लिखा है तो भी कोई बात नहीं, इस तरह से ये एक स्टैंडर्ड मेथड है, ये कभी गलत नहीं हो सकता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। बिकॉज इस तरह के एल्गोरिथम जो है वो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को पढ़ाए जाते हैं, और आप पढ़िए, आपके पहले वाले बैच को भी हमने ऐसे ही पढ़ाया था, ठीक है, जिसमें बी सी डी एफ मेरे पास 4 सेक्शन 8th क्लास के थे, और उन चारों सेक्शंस में मैंने ऐसे ही एल्गो पढ़ाया था। और इसका फायदा क्या हुआ कि उनकी प्रोग्रामिंग जावा की बहुत अच्छी हो गई। सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट मेंशन करेंगे, स्टार्ट करेंगे, उसके बाद सेकंड पॉइंट मेंशन करेंगे, वो इनपुट का पार्ट होगा। वो किसका पार्ट होगा, इनपुट। नाउ इट्स डिपेंड ऑन द एल्गोरिथम कि इनपुट एल्गो में इनपुट हमको क्या क्या करना है। फिर ये स्टेप नहीं है, इसको पॉइंट में नहीं लिखना है, इंटर एनी टू नंबर मैंने लिखा, इसको जस्ट डबल कोट्स के अंदर मेंशन कर देना, ठीक है ना। फिर तीसरा स्टेप क्या आप कर रहे हो, तो तीसरे स्टेप में क्या कर रहे हैं, दोनों वैल्यू को हम आपस में ऐड कर दे रहे हैं और उसको किस में स्टोर कर रहे हैं, सी में स्टोर कर रहे हैं। एंड आफ्टर दैट फाइनली वी हैव रिजल्ट इन सी, वी आर गोइंग टू यूज वन स्टेटमेंट दैट इज कॉल्ड प्रिंट स्टेटमेंट, प्रिंट सी। नाउ once we will print the C, we will get the output and finally stop or end. You can use any one. आप इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे हमारा एल्गो स्टार्ट हुआ था और यहाँ पे क्या हो गया, स्टॉप हो गया। Any problem? It was the algo about to find sum of any two number. Is that clear class? Clear है? अब नेक्स्ट मैं एक और एल्गो आपको बताता हूँ, फिर इसका फीडबैक आप मुझको दो कि ये समझ में आ रहा है कि कुछ और इसमें इंप्रूव किया जाए। जस्ट वेट। अब जो मैं नेक्स्ट एल्गोरिथम आपको बता रहा हूं वो है राइट एन एल्गोरिथम, इट विल बी योर सेकेंड एल्गोरिथम, राइट एन एल्गोरिथम और एल्गो, राइट एन एल्गोरिथम टू फाइंड एवरेज ऑफ टू नंबर, एवरेज ऑफ टू नंबर और एनी टू नंबर। किसी भी दो नंबर का एवरेज क्या करना है, हमको फाइंड आउट करना है। क्या करना है, वी हैव टू फाइंड आउट एवरेज ऑफ एनी टू नंबर। क्लियर है?
किसी भी दो नंबर का क्या करना है, हमें एवरेज फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोग, स्टार्ट। सबसे पहले क्या मेंशन करेंगे, स्टार्ट, आफ्टर दैट सेकेंड पॉइंट इनपुट, दूसरा क्या पॉइंट है हमारा, इनपुट। किसी भी दो नंबर की बात कर रहे हैं तो अगेन वी विल टेक द वेरिएबल ए कॉमा बी, कोई भी दो नंबर इसमें आ जाएगा हमारा ए और बी में, ठीक है। और यहां एक मैसेज हम लोग लिख सकते हैं, एंटर एनी टू नंबर, एंटर एनी टू नंबर, डबल कोट्स में। नाउ स्टूडेंट, व्हाट इज द मेथड टू फाइंड आउट एवरेज ऑफ टू नंबर, दोनों नंबर को आपस में ऐड कर देंगे एंड डिवाइडेड बाई 2, नंबर ऑफ टर्म्स, एड ऑल द नंबर्स एंड डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ टर्म्स या डिवाइडेड बाई 2। अगर 3 होता तो 3 से डिवाइड करते, 4 होता तो 4 से डिवाइड करते, 5 होता तो 5 से डिवाइड करते। तो यहाँ पे हमने एवरेज ऑफ एनी टू नंबर की बात की है, तो a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2। तो तीसरा स्टेप हमारा क्या होगा, यहाँ लिख सकते हो एवीजी। एवीजी का मतलब एवरेज हो गया, या आप एवरेज पूरा भी लिख सकते थे या कोई भी वेरिएबल सी भी ले सकते थे, आप कुछ भी ले सकते हो, बस वो मीनिंगफुल होना चाहिए कि ये वेरिएबल किस लिए यूज किया जा रहा है। तो एवीजी मैंने लिख दिया, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये एवरेज के लिए यूज किया गया है। फिर एरो इसी तरीके से इंडिकेट करेंगे, बिकॉज इधर की वैल्यू हमारा इसमें स्टोर होता है। तो ये एरो क्या इंडिकेट करता है कि जब भी हम कैलकुलेट करेंगे कोई वैल्यू, तो वो वैल्यू हमारा इसमें स्टोर हो जाएगा। तब हमने क्या किया, a प्लस बी को कोष्ट में रखा, क्योंकि दोनों को कंबाइन ऐड करना है, दोनों को एक साथ ऐड करेंगे, उसके बाद डिवाइडेड बाई 2। तो सपोज करो कि अगर a की वैल्यू हमने 4 दे दिया और b की वैल्यू अगर हमने दे दिया 2, तो 4 प्लस 2 हो जाएगा, 4 प्लस 2 हो गया, 4 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2। तो आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, क्योंकि 6 हो जाएगा और 6 को 2 से डिवाइड करोगे तो आंसर क्या मिलेगा हमको, 3 मिलेगा। और 3 किसमें स्टोर हो गया, एवरेज के अंदर हो गया। तो फोर्थ में लिख दोगे आप, प्रिंट एवीजी, एंड फाइनली यहां काम समाप्त हो गया हम लोग का। वी विल मेंशन स्टॉप ऑफ एट एनीवन। ये आपका कंप्लीट एल्गोरिथम हो गया टू फाइंड एवरेज ऑफ एनी two number. So how we have to start, student? We will have to write first, that is your sequence number, and after that statement start, input a comma b. I have taken enter any two number. Now next step should be avg equal to a plus b divided by 2. It means we are adding both numbers and we are going to divide it by number of terms divided by 2 and print avg and finally stop or and. एनी प्रॉब्लम, किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ, हैव एनी प्रॉब्लम? अगर कोई भी प्रॉब्लम होगा तो आप मुझे मैसेज कन्वे करना, फिर उसको इम्प्रूव करेंगे हम लोग। पहले इन दोनों एल्गो को समझने की कोशिश करना और केवल एल्गोरिथम का रूल्स पढ़ना पहले, बहुत ज्यादा अभी कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। एल्गोरिथम प्रोसीजर टू राइट टू सॉल्व एनी लॉजिकल एंड मैथमेटिकल प्रॉब्लम इज कॉल्ड एल्गोरिथम, और यू कैन से द बेसिक फंडामेंटल नॉलेज टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम इज कॉल्ड एल्गोरिथम। कुछ रूल्स हैं उसमें कि ये प्रॉपर इंग्लिश में लिखा जाना चाहिए, इसके जो स्टेटमेंट्स होने चाहिए वो सिंपल होने चाहिए, आप स्टेप्स डिफाइन करो, सीक्वेंस डिफाइन करो, तो सीक्वेंसेस डिफाइंड है, स्टेप्स डिफाइंड है, क्या लिखना है आपको, किस तरह से लिखना है, ये सब कुछ रूल्स में है उसके। अब कैसे लिखना है, तो मैंने दो आपको एग्जाम्पल अभी सेट किया और मैं अभी बहुत सारे एल्गो आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा इस क्लास में, ताकि आप अच्छे से अच्छा प्रोग्रामिंग कर सको और यही लॉजिक आपका क्लियर हो जाएगा। जब अगर आप ऐसे ही पढ़ते चले जाओगे और ऐसे ही कॉन्सेप्ट को क्लियर करते चले जाओगे तो आपको जावा सबसे आसान लगने लगेगा। क्लियर? सो आई होप यू विल एंजॉय दिस क्लास, यू विल गेट इट प्रॉपरली एंड गिव मी योर फीडबैक। यू आर गेटिंग इन द फॉर्म ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश बोथ, और यू वांट ओनली इंग्लिश और यू वांट ओनली हिंदी, और दिस फॉर्म इज ओके फॉर यू। फाइन? Thank you.